हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का गेट एंड ईएसई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। एज यू ऑल नो, in this YouTube channel we are going to discuss each and every concept within 10 minutes. In today's class we are going to discuss block diagram reduction rules. So my dear student, I am having 9+ year teaching experience for GATE and ESE and have been mentored more than 20,000 students across 30+ cities in India, cracked the GATE exam multiple times, taken 50+ motivational seminar in different engineering colleges, and completed 200+ batches for GATE and ESE at different GATE coaching institutes in India. My dear student, you can follow me on the Unacademy platform also. You just need to download the Unacademy app from the Play Store, Google Play Store, and after that you can follow. Many free classes are there, so you can watch the free classes, and if you like the classes, you can take the subscription by using this code live ANK. You will get the maximum discount. So my dear student, block diagram reduction rules में हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे swap with two neighboring summing points. It means student you can make a note whenever two summing points are neighbor or two take-off points are neighbor like that. Two take-off points are neighbor. Let us assume that point A point here, point B point. Then we can swap and interchange their position directly. तो देखो यहाँ पे A और B दो समिंग पॉइंट्स आपस में नेबर थे, तो हमने उसको B यहाँ कर दिया, A यहाँ कर दिया. स्टूडेंट, दिस इज द रूल टू सिंप्लीफाई द ब्लॉक डायग्राम. सो वी कैन से दैट अगर ये टेक ऑफ पॉइंट ऐसे थे तो ये टेक ऑफ पॉइंट ऊपर जा रहा था इस तरफ से ऐसा B, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ऐसा आ जाएगा A. सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट, हमने ये देखा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टू नेबरिंग समिंग पॉइंट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टू नेबरिंग टेक ऑफ पॉइंट. If two take-off points are neighbor, we can swap their position, we can interchange their position. Okay. Now the next rule we are going to discuss, shifting a take-off point after a summing point. It is a critical rule, my dear student. We never want that a take-off point will shift after the summing point because that will make your circuit more complex. यह आपके सर्किट को और कॉम्प्लेक्स बना देगा. स्टूडेंट कैसे बनाएगा उसके बारे में देखते हैं. यहाँ पे मैं साइन लेता हूँ प्लस अभी के लिए, मैं प्लस माइनस में से कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने प्लस ले लिया. Let us assume that I wish to shift this take-off point after this summing point. तो take-off point से क्या मिल रहा है आपको सिग्नल? X मिल रहा है. अब बताओ यहाँ पे Y ऐड हो गया, अगर मैं प्लस साइन कंसिडर किया तो इस टर्मिनल पे जो आउटपुट आया वो क्या आया? X plus Y आया. X plus Y आया. Now what is the requirement of output? X plus Y. And what is the requirement from take-off point? X only. But अब आपने इस take-off point को आगे कर दिया है, अभी भी यहाँ पे X है, यहाँ पे साइन में प्लस ले रहा हूँ समझने के लिए. यहाँ में चाहे मैं प्लस लो चाहे माइनस लो, मैंने प्लस ले लिया. यहाँ मैंने y लिया तो इस पॉइंट पे सिग्नल क्या मिल रहा है आपको? x प्लस वाई. तो आउटपुट तो अभी भी x प्लस वाई मिल रहा है, बट आपको इस टेक ऑफ पॉइंट से क्या मिल रहा है? आपको टेक ऑफ पॉइंट से भी x प्लस वाई मिल रहा है स्टूडेंट. टेक ऑफ पॉइंट से x प्लस वाई इज कमिंग, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम टेक ऑफ पॉइंट? x. सो जो यहाँ पे x प्लस वाई आ रहा है, इस x प्लस वाई में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि वापस x बचे? इसका मतलब जो भी थोड़ी देर पहले आप y में ऐड किए थे, now you need to subtract, my dear student. तो देखो यहाँ पे x plus y हुआ था, जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे यहाँ साइन लगाना पड़ेगा माइनस का, तो x plus y minus y you will get again x. You will get again x. Just let me know yes or no. It means हमने क्या देखा कि अगर एक टेक ऑफ पॉइंट को, whenever you shift a take off point after the summing point, you need to add one more summing point or differencing point, and that will make your circuit more complex. Remember this point student. Okay, so we always prefer that a take off point never shift the summing point. Okay, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. गुड क्वेश्चन है ये. बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या ये फीडबैक लूप लग रहा है? यहाँ पे भी प्लस साइन है. So just try to concentrate on this block first of all. Is it a feedback loop? Yes sir, it is a feedback loop. Student, if it is a feedback loop, just tell me, shall I make a simplified diagram like that? Shall I make a simplified diagram plus minus here, here is G1, here is what student? Again plus sign, again we are having plus sign, and here we can take G2, and here student H of 2, G2, H2, and here you can connect like that, yes or no? And finally you can connect one more point. At this point what is the requirement of signal? H2 is requirement, and at this point H2 and H1, but at this point what is the requirement? H1 H2 requirement. H1 H2 negative sign. So you can write here, my dear student,
You can write here H1, H2. You can write here what? H1, H2. Is this okay or not? Yes sir, okay it is. Now my dear student, just let me know कि ये जो पूरा यहाँ बनागा, क्या ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनेगा? यस। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? G2 upon 1 minus G2H2 and it will be come in cascade with G1. तो G1 मल्टीप्लाई में भी हो गया G1 G2 upon 1 minus G2H2 और ये पूरा फॉरवर्ड पाथ है। तो फीडबैक पाथ क्या बन गया? H1H2। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ? 1 नेगेटिव मतलब प्लस G1 G2 अपॉन 1 माइनस G2H2 मल्टीप्लाई में आया H1H2। When you finally take LCM my dear student, so you will get what? अभी आपने ये देख लिया है कि ये पूरा हमने सोल्व कर लिया, ये पूरा का पूरा हमने सोल्व कर लिया और उसके बाद ये भी देख लिया हमने कि G1 G2 अपॉन 1 माइनस G2H2 ये तो एक ब्रांच आया था आपका। उसके बाद आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई G1 से भी कर दिया और फाइनली आपने जो लगाया यूनिटी फीडबैक। अच्छा यहाँ यूनिटी फीडबैक नहीं है, नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन फीडबैक H1H2 है। तो देखो ये पूरा GS वर्क कर रहा है GS की तरह। तो GS अपॉन अगेन ये भी GS की तरह वर्क कर रहा है, GS अपॉन 1 plus GSHS. So what is the ultimate expression you are getting? In the numerator you will get G1 G2, come on, yes or no? 1 minus G2H2 plus G1 G2 H1 H2. So student we can solve like that. ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये आइडिया लग गया होगा शायद कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया अभी। इज इट ओके स्टूडेंट? चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अभी हम ब्लॉक डायग्राम पे फोकस कर रहे हैं। वेरी सून वी विल डिस्कस सिग्नल फ्लो ग्राफ आल्सो। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं लास्ट। द फाइंड द फॉलोइंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए ब्रांच कुछ ऐसा है, डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, सिग्नल कुछ इस तरह से जा रहा है। इस बार आपको इनपुट दो दे रखे हैं, लेकिन x1 0 है, x2 आपका इनपुट है। तो आप सोचिए कि x2 से ys के बीच में अगर आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इस बार आपका x2 ऑफ s इनपुट की तरह वर्क करेगा और आपके यहाँ फीडबैक जो लग रहा है, देखो प्लस प्लस लग रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस लगा रखा है और यहाँ पे जो आपका 1/s है इट विल वर्किंग एज एन g ऑफ s। और दिस कंप्लीट पाथ अगर मैं आपके लिए हाइलाइटर का यूज करूं तो इस कंप्लीट पाथ मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला कंप्लीट पाथ विल बी वर्किंग एज एन फीडबैक ओनली। दिस कंप्लीट पाथ एक्चुअली वर्किंग एज एन फीडबैक ओनली। तो आप बताइए यहाँ से क्या लेके गया 1 1 1 1, यहाँ से आया 0 0 -1 -1, तो यहाँ आया -1। तो अल्टीमेटली जो इस बॉक्स में लिखा है वो क्या लिखा जाएगा? -s अपॉन s प्लस 1। और यहाँ पे आप इसको कर सकते हो ऐसा, जस्ट टेल मी यस और नो। और आप बताइए स्टूडेंट कि क्या हम नेगेटिव इस माइनस को यहाँ लगा सकते हैं? आपकी मर्जी है तो इस माइनस को यहाँ लगा दीजिए, नेगेटिव फीडबैक कर दीजिए। अदरवाइज आप इसको ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज ए पॉजिटिव फीडबैक, तो GS अपॉन GS मतलब 1 अपॉन s अपॉन 1 माइनस बिकॉज पॉजिटिव फीडबैक एंड 1 माइनस इज आल्सो हियर इन द h ऑफ s। तो h ऑफ s का अगर आप s को लोगे माइनस को तो s इंटू s प्लस 1 आ जाएगा। और फाइनली व्हेन यू LCM, ये माइनस साइन यहाँ भी है तो इस माइनस ने और इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया अल्टीमेटली। व्हेन यू फाइनली टेक द LCM माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू विल गेट? s और s आप देख सकते हो, ये और s कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी। तो आपको यहाँ क्या मिल चुका है? s प्लस 1 और आपको यहाँ पे एक और 1 मिल गया और साथ में ऊपर जब गए आप तो s प्लस 1 मिला था आपको और 1/s तो ऑलरेडी था ही स्टूडेंट। तो s प्लस 1 अपॉन s प्लस 2 इंटू 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन s प्लस 2 इंटू s। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। इज इट ओके और नॉट? So my dear student, that's all from this video. We'll meet in the upcoming video very soon. And in the upcoming class, we are going to discuss about the signal flow graph concept. You can use this code live ANK to get the Unacademy subscription. अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो जो गेट और ESE में एक्चुअली रैंक लेके आना चाहते हो, मैं वो आपको बोल सकता हूँ अनअकैडमी से बेटर प्लेटफॉर्म आपको आज की डेट में नहीं है। यहाँ पे जिस रेट में जिस प्राइस में आपको गेट और ESE के फैकल्टी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इससे स्टूडेंट 10x अमाउंट खर्च करने पे भी आपको वो क्वालिटी टीचिंग नहीं मिल सकता जो आपको यहाँ मिल रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं यू शुड, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको फील करने के लिए आप जरूर प्रोफाइल पे जाइए और विजिट करिए और जितने भी डेडिकेशन है उनको पढ़िए, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनका क्या अभी उनका जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, उनका क्या फीलिंग है, वो आपको पता पड़ेगा। चलिए बाय बाय स्टूडेंट, यू कैन यूज द कोड live ANK for Unacademy subscription. That's it from this video. We will meet very soon in the